Hi, welcome to my channel, and today we will learn what is algebra and why we use algebra. Algebra is a branch of mathematics that uses the symbols and letters to represent the number and quantities in equation and formula. It helps us to solve the problem involving unknown values by using logical operation. Here it is saying that algebra is a branch of mathematics that use the symbols. एल्जेब्रा इज अ ब्रांच एल्जेब्रा मैथमेटिक्स का वो ब्रांच है जो क्या यूज करता है सिंबल्स यूज करता है सिंबल्स लाइक प्लस माइनस इक्वल एंड दिस अदर थिंग्स these are known as symbols and letter a b c d e f g h these are letters it use algebra use letters and symbol to solve the question it help us here it is written that it help us to find the problem solution of problem in which we don't know the value like the example x plus 2 equal to 3 here we don't know the value of x but by using this algebra equation we can find the value of x equal to 3 minus 2 later I will tell you how it comes 3 minus 2 but currently you understand that here it is x equal to 3 minus 2. Let's move forward. What are the key concepts used in algebra? The key concepts used in algebra are variable and constant. Variable, the value which is vary means which get changes at every time. Let us take a equal to 1 and at the next time we will take a equal to 2, next a equal to 3, a equal to 7. We can see here that at every time the value of a is getting changes. Okay, that's why it is known as variable get varies. This is known as variable. What is alphabetic value is known as variables. Okay, earlier I have told you that we learn about symbols and letter. We play with symbols and letter. Here algebra play with symbols and letter. Okay, let us come. What are constant? Variable, we have understand what is variable. The variable is a symbol that represent the unknowing value, the value which is unknown or quantity जिसकी वैल्यू पता नहीं है या फिर जिसकी क्वांटिटी हमें नहीं पता उसके लिए क्या यूज करेंगे हम वेरिएबल. लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज कांस्टेंट. कांस्टेंट वो चीज होती है जिसकी वैल्यू फिक्स्ड है. लेट अस टेक 1 फिक्स है, ये चेंज नहीं होने का. ठीक है, it doesn't change. 9, the mathematical value means the constant doesn't change. Okay, let us understand what is expression. Expression is the way to writing a variable and constant and mathematical operation to solve the equation. Okay, let us see what is expression. An expression is a combination of variable, constant and mathematical operation like addition, subtraction, multiplication and division. For example, we can see here that 2x plus 3y minus 5. This is known as expression. Expression is equal to something that is written in algebraic form or any form which shows an equation is known as expression. If it sign equal come, an equation is a statement that show the equality of two expression. जब दो एक्सप्रेशन के बीच में इक्वलिटी आ जाता है मीन्स इक्वल साइन आ जाता है तो उसको क्या बोलते हैं इक्वेशन. एक्सप्रेशन मीन्स किसी भी टर्म को लिखना, किसी भी लीनियर इक्वेशन को लिखना. और इक्वेशन क्या होता है? एन इक्वेशन इज अ स्टेटमेंट दैट शोज द इक्वलिटी ऑफ टू एक्सप्रेशन. जब दो एक्सप्रेशन, एक एक्सप्रेशन 2x प्लस 3 इक्वल टू 9x प्लस 5, ये क्या होगा? एक एक्सप्रेशन ये था, एक एक्सप्रेशन ये था. जब दोनों के बीच में इक्वल का साइन लग गया तो ये क्या बन गया? इक्वेशन. इक्वल इंडिकेट दैट इट इज एन इक्वेशन. ओके, लेट अस सॉल्व अ प्रॉब्लम. जस्ट सी ए सिंपल प्रॉब्लम. व्हेन अ क्वेश्चन रिटन दैट 2x प्लस 3 इक्वल टू 9, here it means that in this side expression is always equal to this side. LHS equal to RHS means here we can see that we don't know the value of x, even we don't have exact value of total, but here in this side total value is 9.
then we can definitely understand that here also the value comes 9. Let us solve and see this how it is coming 9. When we transfer this value to this side of the equation, the symbol of 3 get changes. If it is positive, then it become negative. If it is negative, then it become positive. Okay, let us see what is happening. 2x equal to 9 minus 3. 9 minus 3 equal to 6. And if it is in multiplication, then it will be divide, and if it will in divide, then it will become multiply. Just see 6 upon 2. X equal to 3. Let us put the value of x in the equation and see the what is coming LHS expression. 2x plus 3. Putting value of x equal to 3 in the equation, 2 into 3 plus 3. 2 into 3 becomes 6, plus 3 becomes 9. Here we can see that LHS equal to RHS. But the main things which we have to know, that we have to find the value of x. Algebra says that you have to solve the unknown value. You have to solve the unknown value which you don't know by the using equation or expression in the following. Okay. Algebra deal with symbols and alphabets. Okay, let us take an example. First question is said that 2x plus 5 equal to 15. When we solve this question, you have to transfer this 5 to this side. If the value in plus positive, then it will become negative. If it is in negative, then it will become positive. जब इधर वैल्यू प्लस में होगा तो इधर जाके माइनस हो जाएगा, और इधर माइनस होगा तो इधर जाके प्लस में हो जाएगा. सॉल्व करके देखते हैं. 2x इक्वल टू 15 माइनस 5, ये होगा ना. 15 माइनस 5 इक्वल टू 10. 2x, और ये आपस में जब कुछ भी नहीं होता है, तो क्या होता है, आपस में मल्टीप्लिकेशन होता है. इन दोनों के बीच में क्या है, मल्टीप्लिकेशन. तो जब मल्टीप्लिकेशन में है तो यहाँ कहाँ जाएगा, डिवीजन में जाएगा. सामने वाले के जो भी यहाँ पे लिखा हुआ, कुछ भी वैल्यू लिखा हुआ, तो इधर कहाँ में जाएगा, डिवीजन में जाएगा. तो यही सेम काम यहाँ भी करेंगे. 10 अपॉन 2. ठीक है. 2 1 जा 2, 5 2 जा 10. x इक्वल टू 5. ठीक है. अब क्वेश्चन सेकंड करते हैं. क्वेश्चन 2 क्या लिखा हुआ, 3y माइनस 7 इक्वल टू 11. ये लिखा हुआ है ना. तो इसे सॉल्व करके देखते हैं कितना होता है. 3y इक्वल टू 11 माइनस 7. 11 माइनस 7 व्हाट इट बिकम, 4. y इक्वल टू 3y, y इक्वल टू 4 अपॉन 3. ओके. अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या लिखा हो. इफ 4x इक्वल टू 28, व्हाट विल द वैल्यू ऑफ x. इफ 4x इक्वल टू 28, देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ x. बोल रहा है जब 4x इक्वल टू 28 हो रहा है तो x की वैल्यू क्या होगी. यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन है, सिंपल. 28 डिवाइड बाई 4. 2 2 जा 4, 14 2 जा 28, 2 1 जा 2, 7 2 जा 14, which becomes 7. x equal to 7. Let us see question number 4th. Determine the value of z if 5z plus 3 equal to 23. Let us solve this. 5z equal to 23 minus 3. जब 3 इधर से इधर गया तो क्या हो जाएगा, प्लस से माइनस हो जाएगा. और यहाँ 23 माइनस 3 तो क्या हो जाएगा, 23 माइनस 3 20. 23 माइनस 3 क्या हो जाएगा, 20. ठीक है. अब यहाँ पे क्या है, 5z है ना. तो 5z किस में है, मल्टीप्लाई में है. तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड. z इक्वल टू 20 अपॉन 5. देन z इक्वल टू 5 4 जा 20.
लेट अस सी द क्वेश्चन नंबर 5th। क्वेश्चन नंबर 5th क्या लिखा है? 2a माइनस 8 इक्वल टू 10। ठीक है, ये भी माइनस में है तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। ये क्या है? -8 लिखा हुआ तो क्या हो जाएगा? प्लस। 2a सेम एज इट इज नोट कर देंगे। अब 10 माइनस ये माइनस में 8 है तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? 10 प्लस 8। टोटल कितना हो जाएगा? 10 प्लस 8 18। 2a इक्वल टू 18 डिवाइड बाई 2। आंसर क्या हो जाएगा? a इक्वल टू 2 1 जा 2, 9 2 जा 18, a इक्वल टू 9। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 6 लिखा है इफ b माइनस 6 इक्वल टू 9 फाइंड द वैल्यू ऑफ b। b माइनस 6 इक्वल टू 9 फाइंड द वैल्यू ऑफ b। यहाँ पे हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? b की। b माइनस 6 इक्वल टू 9। क्वेश्चन नंबर 6, b माइनस 6 इक्वल टू 9 फाइंड द वैल्यू ऑफ 6 b। देन b इक्वल टू 9 प्लस 6। माइनस है इधर, इधर क्या जाएगा? इक्वल टू के इस साइड जब जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। ठीक है, इधर क्या है? माइनस में 6 है, जब इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस में 6। तो यहाँ हमने क्या नोट किया? प्लस में 6। 9 प्लस 6 कितना हो जाएगा? 15। b इक्वल टू 15। आंसर क्या हो जाएगा? b इक्वल टू 15। ठीक है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ c सेटिस्फाइज द इक्वेशन। c का क्या वैल्यू होगा कि इधर भी 24 आएगा। ठीक है, लेट अस सॉल्व दैट। 3c प्लस 9 इक्वल टू 24। when 9 plus 9 go this side, then what it become? -9। 24 minus 9 equal to 3c। 3c इक्वल टू 24 माइनस 9। इधर से इधर गया है तो माइनस हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्लस 9 था। ठीक है, इधर से इधर जाएगा तो क्या होगा? इक्वल टू के इधर माइनस हो जाएगा। ठीक है, -9। 24 माइनस 9 कितना हो जाएगा? 15। 3c इक्वल टू 15। अब यहाँ पे क्या है? आपस में मल्टीप्लाई में। c इक्वल टू 15 अपॉन 3। c इक्वल टू 3 1 जा 3, 5 3 जा 15। c की वैल्यू कितनी आ गई? 5 आ गई। c की वैल्यू 5 आ गई। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? सॉल्व द इक्वेशन 7 माइनस डी इक्वल टू 2। सॉल्व द इक्वेशन 7 माइनस डी इक्वल टू 2। यहाँ पे क्या फाइंड करना है? d की वैल्यू फाइंड करनी है। तो d क्या हो जाएगा? d इक्वल टू 2 माइनस 7। यहाँ ऑलरेडी माइनस है तो यहाँ माइनस ऐसे ही रहने देते हैं। तो 2 माइनस 7 कितना हो जाएगा? -5 और ये भी माइनस का d है। दोनों साइड माइनस का मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो माइनस का जब मल्टीप्लाई करेंगे माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। प्लस d और इधर भी क्या हो जाएगा? +5। ठीक है, तो क्या हो गया? d इक्वल टू 5। लास्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ? e प्लस 4 इक्वल टू 13। e प्लस 4 इक्वल टू 13। e प्लस 4 इक्वल टू 13। फाइंड द वैल्यू ऑफ e को क्या करना? फाइंड करना है। ठीक है, ये तो क्वेश्चन है, e को फाइंड करना है। तो प्लस में इधर से इधर सिंपल माइनस में ट्रांसफर कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 13 माइनस 4। 13 माइनस 4 कितना हो जाएगा? 9। e की वैल्यू कितनी आ गई? 9। फाइंड द वैल्यू ऑफ x। फाइंड किसकी वैल्यू करनी है? x की वैल्यू फाइंड करनी है। और क्वेश्चन क्या लिखा हुआ? 6x माइनस 2 इक्वल टू 22। ठीक है, तो 6x इक्वल टू 22 माइनस में है ना, इधर इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो +2 6x। अब 6x प्लस 2 कितना हो जाएगा? ये 22 प्लस 2 24। x इक्वल टू 24 अपॉन 6। क्यों? क्योंकि ये आपस में मल्टीप्लाई में है और इधर जाएंगे तो डिवाइड में। 6 1 जा 6, 6 4 जा 24। x इक्वल टू 4।